So I'm happy to be again going through God's word with all of you. आप सभीयों के साथ वचन बांटने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। See, when we go through 1 John, Apostle John is almost 95 years old. When he writes this is the last book. Uh, Actually, I think historical order, this is the last book which is written. चरित्र के रूप में देखा जाए तो प्रेरित यूहन्ना का लिखा हुआ आखिरी पुस्तक है ये। पत्री है ये। और जब वो लिख रहे थे तब उनकी उम्र जो है 95 वर्ष की थी। By this time, all the other apostles of Jesus are dead. या इस समय तक जितने भी प्रभु यीशु मसीह के बाकी शिष्य थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। And many wrong teachings have come to the church. और बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है कलीसिया में आ भी चुकी थी। See, he's emphasizing some of the most important things in Christian life. देखिए यहाँ पे मसीही जीवन में जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर उन्होंने जोर दिया है। For example, he's telling about being in fellowship with God all the time. और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे वो कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमेशा एक संगति हमें बनाई रखनी है। See, in Psalm 16, verse 11, it says, in his presence is fullness of joy, in his right hand are pleasures forevermore. भजन संहिता 11। 11, yeah. भजन संहिता 16 उसके 11वें वचन में कहा गया है कि प्रभु के सम्मुख सदा आनंद है और उसके दाहिनी तरफ हमेशा जो है सुख है। That is something we have to experience all the time. तो ये एक बात है जिसका अनुभव हमें हर समय करना भी चाहिए। The moment any sin comes, see any anger or bitterness or that fellowship with the Lord is cut, is gone. जब भी कोई कड़वाहट या कोई बैर भाव हमारे मन में आ जाता है तब उसी क्षण परमेश्वर के साथ की हमारी जो संगति जो होती है वो टूट जाती है। And our desire should be, Lord, I want to get back into fellowship with God as soon as possible. और हमारी मन की इच्छा यही होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परमेश्वर के साथ मेरी संगति वापस लौटे। I'm ready to ask forgiveness to anybody, but I want to get back into fellowship with the Lord. मैं किसी से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ पर मुझे परमेश्वर के साथ की जो संगति है उसमें वापस लौटना ही है। And another thing he emphasizes is love. That और is God's love being poured out in our heart by the Holy Spirit. और दूसरी चीज का जो जोर उन्होंने दिया है वो है प्रेम का, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मनों में उंडेला गया है। And that is why we need to be filled with the Holy Spirit every day. इसीलिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है So that God's love is poured out into our heart. ताकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मन में उंडेला जाए। So he's telling, last week we saw that he's telling that as an old commandment. At the same time, that can become a new commandment. तो यहाँ पे हमने पिछले हफ्ता देखा कि उन्होंने इसे पुरानी वाचा के रूप में कहा है पर उसी समय ये नई वाचा की भी बात हो सकती है। And that old commandment can become a new commandment only if darkness is passing away and true light is really shining in our life. सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट That इट? that old commandment can become a new commandment only when darkness is passing away and true light is already shining. वो जो पुरानी वाचा है वो नई वाचा तभी बन सकती है जबकि वो अंधकार बीत जाए और जो नई ज्योति है वो हमारे जीवन में चमकने लगे। We should be able to tell bitterness, unforgiving attitude, anger, jealousy that is passing away from our life, and true light, which is patience and love and kindness, is being shown in our heart. हम ये कह पाए कि जितनी भी कड़वाहट थी या तो फिर गुस्सा था, क्रोध था और जो जलन की बातें थी वो सब कुछ बीत चुकी है। अब जो है प्रेम और जो करुणा है, भलाई है हमारे जीवन में जो है आने लगी, इस बात को हम कह पाए। And verse 9 says, the one who says, so that from here will is today's portion. The one who says he is in the light, yet hates his brother, is in darkness until now. अभी हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना दूसरा उसके 9वें वचन में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। So
See, this particular phrase you can see many times in 1 John. The one who says uh, that you can see many times. और ये जो वचन यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई ये कहता है, ये जो बात है हम यूहन्ना में कहीं बार देख सकते हैं। See, in 1 John 1:6 is written, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness. यहाँ पे पहला यूहन्ना पहला उसके छठे वचन में कहा गया है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है But if we walk in darkness, और फिर अंधकार में चले then we lie. तो हम झूठे हैं। Okay, verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. यदि आठवां वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। Verse 10. If we say we have not sinned, we make him a liar. 10वां वचन, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। Chapter 2, verse 4. One who says, I have come to know him and do not keep his commandment is a liar. दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन में कहा गया है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। Verse 6. One who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. छठे वचन में, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। So, in the same way, in verse 9 also it says, one who says he is in the light, but we hate his brother. If we hate his brother, we are in darkness. ऐसे ही 9वें वचन में भी कहा गया है कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। So we have to examine our life. Are we saying something, but that is not a reality in our life? तो हमें इस बात को हमारे जीवन में परखना है, हम जो कह रहे हैं परंतु वो हमारे जीवन में वास्तविक रूप में है ही नहीं। See, please remember, it is so easy for us to deceive ourselves. देख के याद रखिए कि अपने आप को धोखा देना जो है बहुत आसान बात है। Somebody said it's as easy as opening or closing our eyes. We किसी ने can कहा deceive ourselves. किसी ने कहा है कि जैसे अपनी आंखों को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, वैसे ही अपने आप को धोखा देना बहुत आसान है। So that's why we have to examine ourselves in the light of God's word. इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन की ज्योति में परखना है। So if we say that we are in the light, but we hate our brother, यदि हम ये कहते हैं कि हम ज्योति में हैं पर हम अपने भाई से बैर रखते हैं, it can be a wife or husband. वो हो सकता है कि पति हो या पत्नी हो। See, instead of the word hate, we can say we blame our wife or husband or another brother. एक बैर के या शत्रुता के उस वचन के आगे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो पति या पत्नी जो है या तो फिर किसी और भाई बहन पे दोष लगाते हो। We are not in talking terms with somebody. किसी के साथ हमारी बातचीत हो नहीं पा रही है। We are having some bitterness in our heart or unforgiving attitude in our heart. हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट या क्षमा नहीं करने वाला कोई भाव है। See, it's written we are in darkness until now. यहाँ पे लिखा गया है कि तो हम अब तक अंधकारी में हैं। How to come to the light? तो फिर हम ज्योति में अब कैसे आए? 1 John 1:7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां वचन। If we walk in the light as he is in the light, we are in fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ can cleanse us from all sin. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So that means honestly I have to acknowledge my sin. इसका मतलब ये हुआ कि ईमानदारी से मुझे अपने पापों को अंगीकार करना है। If needed, ask forgiveness to one another. यदि जरूरत पड़े तो एक दूसरे से माफी मांगनी है। Set that matter right with God. परमेश्वर के साथ सारी बातों को सही कर देना है। And then we can come to the light. फिर हम ज्योति में आ सकते हैं। See, that is what we should be doing as quick as possible. तो यही बात होनी चाहिए जो हम जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकें। But if we are delaying it, we are not in right terms with somebody, and we delay, we don't want to ask forgiveness, we don't want to set that matter right, then we are people who are walking in darkness.
यदि ऐसा हो कि हम हमें जिससे क्षमा मांगनी है उसे हम क्षमा नहीं मांगते हो, जिस व्यक्ति के साथ हमें चीजों को सही करना है उसे हम सही नहीं करते हो, तो हम वो लोग हैं जो कि अभी भी अंधकारी में चल रहे हैं। And verse 10 says, the one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. और 10वें वचन में कहा गया है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। So, our permanent address, what is the meaning? Abide. Abide, the best example is a branch remains in a tree. और बने रहने का मतलब का एकदम अच्छा उदाहरण ये है कि एक डाली जो है एक पेड़ में, एक जो वृक्ष है उसमें बने रहता है। We can say it should be the permanent address in our life. हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा हमेशा का पता होना चाहिए। The one who loves his brother. So, loving our brother, let's say our wife, husband, brother in the church, a sister in the church. Now, living in that continuously in that love relationship should be the permanent address of us. मान लीजिए कि हमारे पति पत्नी या हमारे कलीसिया के भाई बहन के साथ हमारा जो प्रेम है उस प्रेम में हमेशा बने रहना जो है, हमें हमारा हमेशा का जो है सदा का एक पता होना चाहिए। That's for that we have to be continuously filled with the Holy Spirit. Love of God should be flowing into our heart. तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा से हमेशा लगातार परिपूर्ण होना है और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में हमेशा उंडेलता रहना चाहिए। Our address should be, there is no darkness in my life. I'm in love with everybody. और हमारा पता या एड्रेस ये होना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं है, सबके लिए सभियों के लिए मेरे मन में प्रेम है। But it's written in verse 11, the one who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because darkness has blinded his eyes. 11वें वचन में, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। Just think of this. Can you picture this in your life? You're totally blind. You're walking in a road, in a very narrow road. There are many gutters on the way, and you don't know where and which of these gutters you'll fall and break your head and break your leg and everything. तो आप इस बात की कल्पना करके देखिए कि आप पूरी तरह अंधे हैं और आप एक एकदम सकरा एकदम छोटे मार्ग से जा रहे हैं सड़क से, और वहां पे बहुत सारे जो गटर है, गंदी नालियां हैं, और आपको पता नहीं है कि आप कौन से गटर में या नाली में गिर सकते हैं, ऐसे आप आगे बढ़ रहे हैं। See, imagine the father of the house is blind. That means he has got bitterness, anger against his wife or somebody else in the church, and he's having unforgiving attitude. What is written is he is blind. And imagine his wife and two children are following him. और Imagine that. मान लीजिए कि घर का पिता है जो कि ऐसा अंधा है, यानी कि उसके मन में जो है दूसरों के प्रति बैर भाव है या तो फिर क्षमा नहीं करने वाली मनोवृत्ति है, तो उसकी जो घर के उसकी पत्नी या बच्चे जो होंगे उसी का पीछा करते होंगे। Imagine in that narrow road there are so many gutters. For the father of the house is walking behind him, wife and two children. Everybody is going to fall into one of these gutters. ऐसे कल्पना करके देखिए कि वो जो छोटा सड़क है, सकरा मार्ग है, उसमें से ये जो घर का पिता है वो आगे बढ़ रहे हैं और उस सड़क में बहुत सारे गटर है, और उसके पीछे चलने वाले उसके पत्नी और जो बच्चे जो हैं उसके पीछे चलते चलते हो सकता है वो भी गिर जाए उस गटर में। Imagine the mother is having bitterness against his husband. She is blind. Two children are walking behind her, or three children are walking behind her. Everybody is going to fall into the gutter. कल्पना करके देखिए कि ये जो माता है, यदि उनके मन में जो है कड़वाहट है लोगों के प्रति, ऐसे मनोवृत्ति है, तो वो अंधी होकर आगे बढ़ रही है, तो उनका पीछा करने वाला जो उनके बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे जो भी हैं, वो गटर में ऐसे गिर सकते हैं उनके See, पीछा करते। that is what we read here. Walk in darkness and does not know where is that person is going. Because darkness is blinded, what is going to happen to the entire family, you don't know. That's why it is so serious to keep bitterness, unforgiving attitude.
blaming each other, all these things in our life. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो अंधकार में चल रहे हैं, उनकी आंखें अंधी हैं और नहीं जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन से ये जो है क्षमा नहीं करने वाला भाव, ये जो कड़वाहट के भावों को दूर करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। I remember after a marriage, we went to a place in Kerala. मैं स्मरण करता हूँ हमारे शादी के बाद हम केरला में एक जगह गए थे। That relative's house is in a small hill. और वो जो हमारे रिश्तेदार थे उनका घर जो है छोटी पहाड़ पे था। There was a very narrow road to their house. उनके घर घर की तरफ जाने वाला जो सड़क था बहुत ही छोटा सकरा था। Just the other side, by the side of that narrow road, there's a huge gutter. और वो जो मार्ग था उसके बाजू में एक बहुत बड़ा गटर था। It's like a hill. The entire other side is just a huge valley. और एक पहाड़ जैसा था वो, और एक तरफ पूरा तराई जैसा था। I remember just one night around 8 o'clock, just as I started going, entire place is dark. Going, there were some street lights there. There was power cut, and all the lights went off. देखिए मुझे स्मरण आता है एक दिन रात को 8 बजे के आसपास मैं वहां गया। मैं चल रहा था तो स्ट्रीट पे जो सड़क पे लाइट जल रही थी, अचानक से वहां का जो बिजली है वो चला गया, एकदम In, अंधेरा था पूरा। in those days, there were power cut. So power cut may sometimes last for half an hour, 1 hour. उन दिनों में पावर कट हुआ करते थे, तो ये जो बिजली जाने की जो बात है आधा एक घंटे तक चलता रहता। One false step, and I could be in that gutter. एक भी गलत कदम अगर मैंने उठाया तो मैं सीधा गटर में गिर जाऊंगा। I, whenever I read this verse, that's what I remember. जब भी इस वचन को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे यही बात स्मरण आती है। Please remember, my dear brothers and sisters, if you keep any bitterness against anybody in the church, anybody in your family, maybe against your wife, maybe against your husband, against neighbor, you are walking in darkness and you are leading the family also to darkness, where you'll fall, no idea. तो इस बात को भाइयों बहनों कृपा करके स्मरण रखें, यदि आपके मन में किसी के प्रति भी कड़वाहट हो सकता है कि वो आपके पति हो, पत्नी हो, या तो क्या कलिसिया के भाई या बहन, या आप पड़ोसी हो सकता है, तो यदि ये बात आपके अंदर है तो आप में अंधकार है, और आप कहीं भी आगे बढ़ेंगे तो आपके जो परिवार के जन हैं जो आपका पीछा करते हैं वो भी गटर में गिर जाएंगे कहीं। That's why what we read in verse 11 is so important. Verse 10 is so important. Your permanent address should be, I want to remain in love with everybody. इसलिए जो 10वां वचन जो हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा हमेशा का पता ये होना चाहिए कि हम सभियों के साथ हमेशा ही प्रेम में बने रहते हैं। Any bitterness, anything comes, I want to settle as quick as possible because I don't want to be in darkness. कभी भी कोई भी अक्षमा करने वाली बात मेरे जीवन में आ जाती है तो मुझे तुरंत ही ठीक करना है, क्योंकि मेरे जीवन में कोई भी अंधकार मुझे नहीं चाहिए। See, in the animal world, we can see there are different families. देखिए जानवरों के जो दुनिया है वहां पे हम देखते हैं कि अलग अलग परिवार होते हैं। We have studied about cat family. हमने जो बिल्ली का परिवार है उसके बारे में See, पढ़ा है। cat family, there is tiger, cheetah, lion, leopard, all are in cat family. जो बिल्ली का जो परिवार आता है उसमें कौन सी प्रजातियां होती है, वहां पे शेर होता है, और जो है बाघ, Cheetah, lion, चीता होता leopard, है, और ऐसे बहुत सारी चीजें, tiger. तेंदुआ होता है, Yeah, and the बाघ होता again है। again there is dog family, which is called canid family, where there is a wolf, fox, jackals, raccoon. All these are in dog family. और जो कुत्ते का जो परिवार होता है उसमें क्या क्या आता है, जो अ, Wolf, fox, jackal, raccoon. Okay, all these animals are in that dog family. और ऐसे कुत्ते की प्रजाति में आने वाले ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। So now there is two families here. One is love family, the other is hate family. तो यहाँ पे दो तरीके के परिवार हैं, एक प्रेम करने वाला परिवार, दूसरा जो है नफरत का परिवार। So patience, love family includes patience, kindness, meekness, gentleness. All are in that love family. और जो प्रेम का परिवार है वहां पे करुणा है, दया है, प्रेम है, संयम है, और जो ये सारी बातें जो है
प्रेम के परिवार में हैं। What are there in the hate family? और नफरत का जो परिवार है उसमें क्या क्या है? Blaming others, bitterness, anger, jealousy, unforgiving attitude. दूसरों पर दोष लगाना, क्रोध करना और जलन रखना, क्षमा नहीं करना, कड़वाहट रखना, ये सारी बातें हैं। So we have to make sure that we are all the time in love family. तो हमें इस बात को पक्का कर लेना चाहिए कि हम हमेशा ही प्रेम का जो परिवार है उसमें हैं। That's why we have to keep a clean heart, clear conscience all the time. इसलिए हमारे पास एक शुद्ध हृदय और एक साफ विवेक हमेशा होनी चाहिए। In such a heart, God can pour His Holy Spirit all the time. और ऐसे हृदय में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा जो है लगातार उंडेल सकते हैं। And He gives us the ability to love others. और वो हमें काबिलियत देते हैं ताकि हम दूसरों से प्रेम कर पाए। Please remember, God is not telling us to produce love, produce patience, produce kindness. He gives us the ability to love others. देखिए, परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने अंदर जो है प्रेम को उत्पन्न करें या तो फिर करुणा को उत्पन्न करें या संयम को उत्पन्न करें, परंतु परमेश्वर हमें वो क्षमता देते हैं, काबिलियत देते हैं ताकि हम ये सब कुछ कर पाए। So all that we have to do is go to God and receive that love from Him through the Holy Spirit. हमें यही करना है कि हम परमेश्वर के पास आए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर के पास से वो प्रेम को हम पाए। Now we can read from verse 12 onwards. अब हम I'll 12वें read वचन से पढ़ें। I'll read 12 to 14. It's a continuous portion. I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for your name's sake, forgiven you for his name's sake. I'm writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I've written to you, children, because you know the Father. I've written to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I've written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. 12 to 14, sister. अब 12वें वचन से 14 वचन तक। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। So here we read about 3 stages of Christian life: children, young men, and fathers. यहाँ पे हमने मसीही जीवन के 3 स्तरों को देखा है। बच्चे हैं, जवान है और फिर पिता हैं। See, it's not on the basis of age. देखिए, ये जो है हमारे उम्र के हिसाब से नहीं है। A person can be 70 years old, but can be a child as far as Christian life is concerned. हो सकता है कि एक व्यक्ति का उम्र जो है 70 वर्ष का हो, परंतु मसीही जीवन में अगर निर्धारित करें तो हो सकता है बच्चे के समान हो वो। A person can be 40 years old, perhaps. He can be a real father. और हो सकता है कि एक व्यक्ति की उम्र जो है 40 हो, पर वो सच में एक पिता भी हो सकता है। So it's all depends on how we develop, how seriously we take Christian life and how we develop in Christian life. तो ये सारी बातें जो है हमारी मसीही जीवन पर आधारित है कि हम अपने मसीही जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से उसमें आगे जाते हैं। See, it's written about children, 2 main things. तो यहाँ पे बच्चों के विषय पे 2 मुख्य बातें लिखी हुई हैं। It's written about children, first of all, in verse 12, that their sins are forgiven for his name's sake. और यहाँ पे बालकों के विषय में 12वें वचन में लिखा गया है कि उसके नाम से उनके पाप जो है प्रभु के नाम से क्षमा किए गए हैं। So a child spiritually is a person who received the forgiveness of sin, like it's written in 1 John chapter 1 verse 9. We confess our sin, God is faithful to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. तो जैसे कि बच्चों को जो है पाप की क्षमा मिल सकती है, जैसे कि पहला योना 1 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा गया है कि यदि हम पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करें तो परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करते हैं, साफ करते हैं। So it's also written in verse 13, the second portion, that children, have written to you, children, because you know the Father.
और यहाँ पे 13वें वचन के दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि मैं लड़कों तुमसे कहता हूँ क्योंकि तुमने पिता को जाना है। So, another characteristic mark of a child is they come to know God as a father and they have come to that love relationship with God. और दूसरे जो मुख्य बात बालकों के विषय में ये है कि वो पिता को जान चुके हैं और वो पिता के प्रेम में आ चुके हैं। See, that is also very important for our life to be really founded in the love of God. तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही मुख्य बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम में जो है पाए जाएं। That my father loves me deeply, and as is written, uh, that he rejoices over me. He is so happy with me. To really know that, that's very important in our Christian life. इस बात को जानना कि मेरे पिता मुझसे बहुत ही गहराई से प्रेम करते हैं और मुझ पे हमेशा आनंदित और मग्न रहते हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। That is the foundation of a Christian life. हमारे मसीही जीवन की बुनियाद या नींव यही है। It's important to be founded in that fact that uh, God is my father and he loves me deeply. इस बात को जो है हमारे जीवन में पाए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर मेरा पिता है और वो मुझसे बहुत ही गहराई से प्रेम करते हैं। But it's written in First Corinthians about Corinthian Christians that there is all the time quarreling and fighting among them, and they were spiritually speaking, they were children. So that is another characteristic mark. They are all the time fighting and quarreling and strife and envy, and all these things are there in their life. पहले कुरिन्थियों के विषय में ये लिखा हुआ है कि उनके कलीसिया में हमेशा जो है उनके जीवन में झगड़ा, लड़ाई और विद्वेष चलता रहता था। तो ये आत्मिक रूप से वो जो है ये सारी झगड़े वाली बात जो उनके जीवन में चलती रहती है, तो वो आत्मिक रूप से बच्चे माने गए हैं। Now, as we come out of that stage of being children to become a young person in Christian life, अब वो जो बालकपन का जो स्तर है उसमें से हम बाहर आकर हम एक मसीही जीवन में एक जवान के समान आते हैं। these are the three marks of a person who has become a young person in Christian life. और एक मसीही जीवन में जवान जो हो चुका है उसके 3 चिन्ह ये हैं। We see in verse 14, second part, you are strong. और हम 14 वचन के दूसरे भाग में देखते हैं कि तुम बहुत ही बलवंत हो। Strong, it's not strong in yourself, strong in the grace of God. बलवंत यानी कि अपने आप में बलवंत होना नहीं, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होना। They are filled with the Holy Spirit and they're strong in the grace and the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत है। And second, word of God abides in them. और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है। Word of God is has got a permanent address in their heart. उनके हृदय में परमेश्वर के वचन का हमेशा हमेशा का एक सदा का एक पता है। As is written in Colossians 3:16, let the word of God richly dwell in you. और कोलोसियों 3 अध्याय के 16वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बहुतायत से जो है बने रहे। See, it's not possible for us to read word of God all the time. That's not what is written here. देखिए, हमारे लिए परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते रहना जो है वो मुमकिन नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। We have to meditate on God's word हमें again and again and again. हमें परमेश्वर के वचन पर बार बार मनन करते रहना है। As is written in Psalm 1, a person who meditates in God's word is like a tree that's planted by the riverside, strong and with strong roots and a real lively tree. जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के वचन में मनन करता है वो उस वृक्ष के समान है जो है नदी के किनारे लगाया गया हो और उसका जो जड़ें हैं वो बहुत ही मजबूत है और फलता फूलता है, वो मजबूती से बना रहता है। So we have to read God's word regularly and meditate on God's word regularly and obey God's word regularly. हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को लगातार मनन करते रहना है And obey God's word regularly.
और परमेश्वर के वचन को हमेशा पालन भी करना है। And third is you have overcome the evil one. और तीसरी बात जो है दुष्ट पर जय पाना है। So to overcome Christian life, to become an overcomer in Christian life, you should be able to carry the cross and follow Jesus Christ. मसीही जीवन में जयवंत जीवन जीने के लिए हमें जो है अपना क्रूस उठाना है और मसीह का हमेशा पीछा करना है। We have to regularly, consistently say no to our will and yes to God's will. हमें लगातार अपनी इच्छा को ना कहना है और प्रभु की इच्छा को हाँ कहते जाना है। As is written in 2 Corinthians 4:10, always bearing about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus can be manifest in our life. दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 10वें वचन में जैसे लिखा हुआ है कि हमेशा प्रभु यीशु के मृत्यु को अपने शरीर में लिए चलना फिरना। But then it's written about fathers. अब पिता के बारे में लिखा गया है। See, that is, a father is a person who has got children. Spiritual, that means a spiritual father has got spiritual children. Then only he can become a spiritual father. यहाँ पे आत्मिक पिता के बारे में लिखा गया है जिसके आत्मिक संतान है, यदि उसके पास आत्मिक संतान है तो ही वो आत्मिक पिता बन सकता है। So it's written about such a spiritual father that you know him who has been from the beginning. और यहाँ पे आत्मिक पिता के बारे में लिखा गया है कि तुमने उसे जाना है जो कि शुरुआती से है। They have learned to walk with the Lord, to come to such an intimacy with God, and they have, and through their life, they have produced spiritual children. और वो प्रभु के साथ चलना सीखे हैं और परमेश्वर के साथ गहराई के संबंध में होकर वो चले हैं और उसके द्वारा उनके आत्मिक संतान उत्पन्न हुए हैं। See, there is a verse in 1 Corinthians 3:9. It's written, we are God's fellow workers, you are God's field. पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। See, there are some who are fellow workers with God. That means God is working along with God. They are also working. But so many Christians are just like God's field. देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जहाँ पे परमेश्वर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे जन हैं जो कि खेती है परमेश्वर के जन जो है। If you can turn for a moment to Hebrews chapter 5. यदि आप मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसके 5वें अध्याय में, it's written that verse 13, everyone who partakes only of milk, that's a child, spiritually speaking, is not accustomed to the word of righteousness who is a babe. 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। See, a child, a small child you cannot say a 3 months old child, 6 months old child, you cannot put a chicken piece or a mutton piece into its mouth. You won't be able to chew it, won't be able to stomach it. एक 3 या 6 महीने के बच्चे के मुंह में आप जो है चिकन या मटन की कोई भी पीस आप नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बिल्कुल चबा ही नहीं पाएगा। But it's verse 14 says, solid food is for the mature, who because of practice have the senses trained to discern good and evil. 14वें वचन में लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। You think of some of the senses. Say, for example, a thought life is trained to discern good and evil. Our eyes are trained to discern good and evil. Our tongue is trained to speak what is good, what is evil. देखिए कुछ ज्ञानेंद्रिय के बारे में हम सोच सकते हैं। हमारे जो बुद्धि है उसको हम अभ्यास कराते हैं ताकि वो भला और बुरा समझ पाए। हमारी आंखों को हम अभ्यास कराते हैं ताकि वो भला और बुरा समझ पाए। हमारे जो जुबान मुंह है उसे हम अभ्यास कराते हैं ताकि वो सही या गलत जो है उसका पहचान करे, परखे। So that means I've learned to reject immediately evil thoughts, bad thoughts, foolish thoughts, sinful thoughts, and take my eyes away from sinful things. Now I've learned through exercise all these things.
इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभ्यास के द्वारा ये सीखा है कि यदि कोई गलत सोच विचार या बुरे सोच विचार मेरे मन में आए तो उसको मैं नकार दूं। यदि कोई गलत चीज मेरी आंखों के सामने आए तो उसे ना देखूं, मेरी आंखों को वहां से हटा लूं। I don't just speak out whatever I like. Through my mouth, I've learned to speak only what is profitable and edifying things. और मैं मुंह के द्वारा जो कुछ मेरे मन में आता है वो सब कुछ नहीं बोलता हूँ, परंतु जो अच्छी भली बातें, जो उपदेशजनक और जो अच्छे फल लाने वाली बातें हैं वही करता हूँ। That is where, that is to the life we all have to grow. यही ऐसा जीवन है जिसमें हम सभियों को बढ़ना है। That is becoming mature in Christian life. यही है मसीही जीवन में सयाना होना। If you are just uttering whatever comes to your mind, you are a child. यदि आपके मुंह में जो कुछ आता है वो सब कुछ आप बोलने लग जाते हैं तो आप सिर्फ एक बालक हैं। That is not the way God wants us to remain. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे ही हों। Okay, now there is a common exhortation for children, young people, and even if you are a spiritual father, there is one common exhortation for all three of them. देखिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए और पिताओं के लिए, आप जो कोई भी हो, आप सभी के लिए एक समान एक प्रोत्साहन देने वाली बात भी यहाँ पे कही गई है Warning to all of them. और सभियों को चेतावनी देने के लिए। That warning is verse 15. 15 वचन में वो चेतावनी है। Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So whatever be your stage, you have to make sure that you are not loving the world anytime or the things आप in the world. आप कोई भी स्तर पे हो तो आपको इस बात का निश्चय करना है कि आप इस संसार से या तो फिर संसार में से संसार में की कोई भी वस्तु से आप प्रेम ना रखें। See, when Bible tells about world, it's not referring to all these trees and hills and valleys and mountains and rivers. देखिए, जब बाइबल में संसार कहा गया है तो यहाँ पे जो पेड़ या पौधे या तो फिर जो पहाड़ या पर्वत है या नदियां, इसके बारे में नहीं कहा है। World refers to verse 16. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. 16 वचन में संसार को कहा गया है कि वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। So it's written here, just think of verse 15. If anyone loves the word, love the Father is not in him. यहाँ पे 15 वचन में आप देखिए, आप याद रखें, लिखा गया है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। That means the moment love of the world comes in, love of the Father goes out. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही संसार का प्रेम आ जाता है मन में तो पिता का प्रेम वहां से बाहर चला जाता See, है। that's something we have to remember. The moment any love of the world comes in, love of the Father goes out. तो यही हमें हमेशा स्मरण रखना है कि जिस क्षण में संसार का प्रेम आ जाता है हमारे मन में, तभी पिता का प्रेम हमसे चला जाता है। Now take the other way around. अभी दूसरी तरीके से लें, Whenever the love of the Father comes in, love of the world goes out. जब पिता का प्रेम हमारे मन में आता है तो संसार का प्रेम चला जाता है। So how to drive out the love of the world from our life? हमारे जीवन से संसार के प्रेम को हम कैसे भगा सकते हैं? It's not by fighting against the world. दुनिया के साथ, संसार के साथ लड़के नहीं हो सकता। It's by allowing God's love to come into our heart. परमेश्वर के प्रेम को हमारे मन में आने की अनुमति देने के द्वारा हो सकता है। The moment love of the Father comes in, and if love of the Father is inside, love of the world is not there. जैसे ही पिता का प्रेम हमारे मन में आ जाता है, रह जाता है, वैसे ही संसार का प्रेम हमारे मन में नहीं रहता फिर। See, this is what we say as expulsive power of a new affection. तो इसी को कहा जाता है कि एक नया जो प्रेम है उसका सामर्थ्य यही है। That means when love of the Father is there, it automatically expels love of the world from us. उसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पिता का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है वैसे ही जो संसार का प्रेम है वो उसे बाहर कर देता है। That is why we have to be filled with the Holy Spirit continuously and allow God's love to remain in our heart as a permanent address in our life. इसलिए कहा गया है कि हमें पवित्र आत्मा से लगातार परिपूर्ण होते जाना है और परमेश्वर के प्रेम को हमारे मन में हमेशा का हमारा जो पता है उसके रूप में हमें बनाए रखना है। So what are these love of the world?
अब इस संसार का प्रेम क्या है? First is lust of the flesh. पहली बात है शरीर की अभिलाषा। Lust means great desire. अभिलाषा यानी कि बहुत तीव्र इच्छा। So, lust of the flesh refers to bodily passions, and we can say passion for food, sex, sleep. All these are coming in that. देखिए, शरीर की अभिलाषा कहा जाए तो हमारे जो खाने के प्रति जुनून है, या तो फिर जो लैंगिक बातें हैं, या दूसरी चीजें हैं संसार की, उसके प्रति जो जुनून या इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हमारे मन में है, वो है। See, sex is only legitimate in marriage. Outside marriage, that is illegitimate. That's sinful. यौन संबंध जो है वैवाहिक जीवन में जो है वो सही माना जाता है, यदि उसके बाहर ऐसा होता है तो वो पाप माना जाता है। Food, that's also a legitimate desire. But if food is our God, that becomes a sin. खाना जो है वो सही इच्छा होती है, परंतु यदि परमेश्वर की इच्छा के आगे जाके वो होता है हमारे जीवन में इच्छा, तो वो पाप है, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। Overindulge in sleep. That is also sleep is extremely good, very important. But if we are oversleeping, that is sinful. जो नींद है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, यदि हम जो नींद है उसे बहुत ज्यादा जो है हमारे जीवन में रखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम सोते हैं, तो वो भी गलत है। Now, lust of the eye refers to materialism and covetousness which comes through our eye. आंखों की अभिलाषा जो है, हमारी आंखों के द्वारा हम जो है हमारे मन में दूसरे चीजों के पर लालच होता है, उस चीजों के द्वारा आता है। See, if we are desiring for somebody else's car or somebody else's wife or somebody else's girl or whatever, it can be a mobile which somebody else's have. All these are lust of the flesh. अगर हम अपने मन में जो है दूसरे की जो पत्नी है, या तो फिर कोई लड़की है, या कोई गाड़ी, Lust of the eyes. Sorry. तो हाँ, जो गाड़ी है उसके प्रति बड़ी लालच रखते हैं, तो ये आंखों की अभिलाषा है। And pride of life is we want to be somebody, and we want to be somebody before others, somebody in the world. I want to have a name for myself. All these are pride of life. जीविका का घमंड ये होता है कि हम दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, दूसरों के सामने नाम कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने की जो इच्छा रखते हैं, ये जीविका का घमंड है। So we can see in these three things right in Genesis chapter 3 verse 6 when Adam and Eve went to the garden and Satan came to tempt. उत्पत्ति की किताब तीसरे अध्याय के छठे अध्याय में, छठे वचन में हम इसे देखते हैं, जब आदम और हव्वा के पास जो है शैतान प्रलोभन लेके आता है। There is written, when the woman saw that the tree was good for food, it is delight to the eyes, and tree was to uh, desirable to make one wise. So there we can see lust of the eye, lust of the flesh, and lust pride of life. यहाँ पे छठे वचन में उत्पत्ति 3:6, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड तीनों है यहाँ। We can also see in the three temptations of Jesus exactly the same thing. और प्रभु यीशु मसीह के सामने जो 3 प्रलोभन आए थे, उसमें भी हम यही बातों को देख सकते हैं। Matthew chapter 4, we see that Satan took Jesus to, first of all, he told him, if you are a son of man, command these stones to become bread. So that is the lust of the flesh. तो पहली बार जो है मत्ती चौथे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये जो पत्थर यहाँ पड़े हैं, तो उसे जो है रोटी बना दे, तो वो जो है शरीर की अभिलाषा हुई। And he took him to the high mountain, showed all the kingdoms of the world and his glory, lust of the eye. और वो जो है बड़ी ऊंची पहाड़ की चोटी पे उसे ले गया और इस दुनिया की सारी महिमा को उसे दिखाया, तो वो आंखों की अभिलाषा है। And devil took him to the holy city and asked him to jump from here. That is pride of life. और शैतान ने उसे जो है पवित्र मंदिर के ऊपर ले गया और उसे कहा कि यहाँ से कूद जा, तो वो जो है जीविका का घमंड है। And we see that Jesus overcame Satan by the word of God. अब वहां पे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के उन प्रलोभनों पर जय पाते हैं। So we can say in simple,
lust of the eye, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. We can say like this: it is passion, possession, and pride. तो हम जो है आंखों की शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, उसे ऐसे कह सकते हैं, वो जुनून है। और जो Passion, possession, and pride. और वो जो है बहुत ज्यादा जुनून होने वाली, बहुत तीव्र इच्छा है, और संपत्ति है, और घमंड है। So please remember, it's not by fighting against them that we get victories, by allowing God's love to possess us. When God's love comes inside our heart, this love of the world goes out of our life. देखिए, हमें इस बात को याद रखना है कि हमें इस चीजों की प्रति लड़ना नहीं है, पर जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में आता है, उमड़ता है, तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन से बाहर चली जाती है, सारे जो प्रेम है बाहर चले जाते हैं। Make sure that you are in connection with God, in fellowship with God all the time. हमें इस बात का निश्चय रखना है कि हमारी परमेश्वर के साथ की संगति जो है वो हमेशा हम बनाए रखते हैं। Make sure that just as a branch abides in a tree, sap flows to the tree, Holy Spirit flows to you, and it will help you to overcome all these things. इस बात को स्मरण रखना है, जैसे कि एक डाली जो है वृक्ष में बनी रहती है, और वृक्ष का जो पोषण है वो जो है डाली में जाकर वो फलता फूलता है, वैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे, जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरता जाता है और हम उसमें बने रहते हैं। So we'll stop it for the time being. Thank you, sister, for very nice translation. यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।